नमस्कार, मैं रुक्मणी और स्वागत है आपका खबर आसनसोल में, स्पॉन्सर्ड बाय स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर सीबीएसई बोर्ड। मोबाइल हॉस्पिटल है सुल्तानचल वासियों की पसंदीदा स्टोर सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। ओरिएंट स्टील इंडस्ट्रीज अब फर्नीचर मैन्युफैक्चर हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आए डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। आइए सीधे करेंगे खबरों की शुरुआत। बीजेपी राज्य संपादक कृष्णेंदु मुखर्जी ने आज एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। कृष्णेंदु मुखर्जी ने आसनसोल नगर निगम पर कई आरोप लगाए और सीबीआई से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले जनता ने पानी की मांग पर सड़क अवरोध किया था और काउंसिलर का घेराव किया था। आखिरकार 500 करोड़ की अमरूद प्रोजेक्ट का पैसा क्या हुआ? उस वक्त तो दावा किया गया था कि पानी की समस्या हल हो जाएगी। अब दोबारा अमरूद फेज 2 प्रोजेक्ट का पैसा आया है और फिर उसे ही जिम्मेदारी सौंपी गई है जो अमरूद प्रोजेक्ट फेज 1 में था। इसके अलावा कृष्णेंदु मुखर्जी ने 86 लाख रुपए की दुर्नीति और डेंगू की समस्या पर भी सवाल उठाए हैं। डेकेছি এই প্রেস মিট করতে বাধ্য হচ্ছি। বর্তমান আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনের যে এরিয়া, এই জায়গায় আপনারা দেখেছেন একদিন আগে মানুষ কিভাবে রাস্তায় নেমে পানীয় জল নেই তার প্রতিবাদে পথ অবরোধ করেছে। রাস্তা প্রশাসন দাঁড়িয়ে থেকে সেখানে তাদেরকে আশ্বাসন দিয়েছিল পুলিশ প্রশাসন যে জলের ব্যবস্থা করা হবে। কালকের দিন পার হয়ে গেছে, আজকে 11 দিন পড়লো, এখনও পর্যন্ত কালকে 10 মিনিটের জল এসেছিল, আজকেও একই অবস্থা, এখনও পর্যন্ত জলের জন্য হাহাকার করেছে। তো আসানসোল কর্পোরেশন এরিয়ায় এই রকম কী জন্য হবে? প্রত্যেকটা জায়গায় জামুরিয়ায় 300 উপর ট্যাঙ্কার সেখানের মানুষরা কিনছে। আসানসোল শহরে প্রায় 200-250 ট্যাঙ্কার রোজ মানুষ জল কিনছে। কুলটিতেও 300 ট্যাঙ্কার জল, আসানসোল সাউথ সেখানেও যান ওই রকম 350, রানীগঞ্জে তাই। তাহলে এত ট্যাঙ্কারে করে জল মানুষকে কিনতে হচ্ছে। আচ্ছা, একটা জিনিস বলুন আপনারা, যে 500 কোটি টাকার অমৃত 1-এর টাকা কর্পোরেশন এসেছিল, সেখানে বলা হয়েছিল যে প্রত্যেকের বাড়িতে সাফিসিয়েন্ট জল, পর্যাপ্ত পরিমাণ পানীয় জল আসানসোলের নাগরিকরা পাবে এই কর্পোরেশন এরিয়ায় যারা থাকে। তাহলে সেই 500 কোটি টাকার কাজ যদি ঠিক করে হয়েছিল, তাহলে আজকে মানুষ কেন হাহাকার করছে জলের জন্য? আজকের এই জলের যে আকাল, এটার জন্য তাহলে দায়ী কে? সেই 500 কোটি টাকার কাজ কি হয়েছে? আমরা অবিলম্বে আমরা চাই কর্পোরেশন শ্বেতপত্র প্রকাশ করুক 500 কোটি টাকার অমৃত 1 প্রজেক্টের কী কাজ হয়েছে, কেন মানুষ এই রকম অবস্থার মধ্যে থাকবে? 1 নম্বর। 2 নম্বর, অমৃত 1 প্রজেক্টের আবার সেকেন্ড ফেজের টাকা এসছে কর্পোরেশন, তাহলে এই টাকাও খরচা হবে। তাহলে যদি প্রথম প্রজেক্টের জন্য 500 কোটি টাকা খরচা করে মানুষ যদি জলের জন্য রাস্তায় নামছে, তাহলে দ্বিতীয় প্রজেক্টে একই জিনিস হবে। এবং সবচেয়ে অবাক করার বিষয় যে এই প্রথম প্রজেক্টের যে একজন ইঞ্জিনিয়ার আমাদের কাছে নাম এসছে, অচিন্ত বাড়ুই, তিনি দায়িত্বে ছিলেন। সাকসেসফুলি যদি উনি প্রথমবার প্রজেক্টটা ঠিক করে করতে পারতেন, তাহলে সেকেন্ড টাইম এখনও তাকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তার মানে প্রথমবারের যে লুট হয়েছে, আবার এই লুটটা হবে এবং আসানসোলের নাগরিক অমৃত 2 প্রজেক্ট শেষ হওয়ার পরও একই অবস্থায় থাকবে যে অবস্থায় আজকে আছে। আপনি দেখুন প্রত্যেক জায়গায় 300 টাকা করে জল কিনতে হচ্ছে, সেইটা 400 করে কিনছে সবাই। আপনারা যান, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, এটা ইনকোয়ারি করুন। জল বিক্রি, ট্যাঙ্কারে করে জল বিক্রি, তাতেও কিন্তু ঘোটালা হচ্ছে। আমাদের যে কেএসটিপির যে ট্যাঙ্ক রয়েছে, ট্যাঙ্কি বানানো হয়েছে, সেখানে ডিহিকা থেকে জলটা, পাম্প হাউস থেকে সেখানে জলটা আসার কথা, প্রপার যতটা জল আসার কথা 2 ফুট 3 ফুট থাকার কথা, এখন রয়েছে 2 ফুট 3 ফুট থাকার কথা, হচ্ছে 10 ফুট 12 ফুট থাকার কথা। কেন হচ্ছে না? কেন ওই ডিহিকা পাম্প থেকে জলটা চলে আসছে ওই ইসমাইল পাম্প, ওইখানে ইসমাইল রিজার্ভারে, তার জন্য কেএসটিপি কিন্তু জলটা পৌঁছাচ্ছে না। কী জন্য হচ্ছে? এর মধ্যে একটা আর্থিক বেনিয়ম রয়েছে, আর্থিক দুর্নীতি রয়েছে। কি রয়েছে? এখানের যে কন্ট্রাক্টর যারা রয়েছে মেনটেনেন্সে, যেখানে পাম্প হাউসের মেনটেনেন্সের যে ট্যাঙ্কার যারা রয়েছে, কন্ট্রাক্টররা যারা পরিষ্কার করার দায়িত্বে রয়েছে, সেইখানেও একটা আর্থিক দুর্নীতি রয়েছে, আর্থিক অনিয়ম রয়েছে।
এটা ইনকোয়ারি করা উচিত। কিন্তু কাকে বলবো কীভাবে ইনকোয়ারি হবে? আপনারা দেখেছেন কর্পোরেশনের এর আগে যে একটি আর্থিক দুর্নীতি হয়েছিল 2 বছর আগে, যেখানে আপনার 86,000 টাকার একটা দুর্নীতি করেছিল একজন স্টাফ, তার বিরুদ্ধে একটা এফআইআর হয়েছিল মাত্র 86,000। হ্যাঁ বলছি 1,76,000 1,76,000 জয়দীপ চার বলে একজন টাকা নয়শয় করেছিল। সেটা এফআইআর হয়েছিল, সেটা আজ পর্যন্ত সেটা জিডি হয়েছিল, আজ পর্যন্ত এফআইআর হয়নি। সেটা যখন ইনকোয়ারি করা হলো, ইনকোয়ারি করে দেখা গেল 86 লক্ষ টাকার সেখানে টাকা উঠিয়েছে, অথচ কর্পোরেশনে জমা করেনি 86 লক্ষ টাকা। এর আগে বহুবার আমরা বলেছি, আমরা কুলটিতে বড় যখন ঘেরাও করলাম সেইখানে আমি বলেছিলাম যে এই রকম দুর্নীতি একটা হয়েছে। এই দুর্নীতির পেছনে এই মানুষগুলোই রয়েছে, কর্পোরেশন যারা চালাচ্ছে, কর্পোরেশনের যে ফিনান্স অফিসার রয়েছে সেও আছে। এখন ইনকোয়ারি কমিটি বসেছে, ফিনান্স অফিসার সেই একই লোক রয়েছে যে ফিনান্স অফিসার সেই সময় ছিল। তাহলে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, এটাকে ভালো করে যদি ইনকোয়ারি করা হয় এই দুর্নীতিটা 2 কোটি টাকাতে দাঁড়াবে। আর্থিক তছরূপ এই ভদ্রলোক 2 কোটি টাকার উপর করেছে। আচ্ছা, অবাক বিষয় আপনারা দেখুন, এই যে জয়দীপ চারের হয়ে কোর্টে ওকালতি কে করছে, আপনারা একটু খবর নিয়ে দেখুন, আপনারা ইনকোয়ারি করুন জয়দীপ চারের উকিলটা কে, তাহলে আপনাদের কাছে সমস্ত বিষয়টা ক্লিয়ার হবে। কীভাবে আর্থিক দুর্নীতিতে এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা কিভাবে মদত দিচ্ছে। প্রত্যেকটা জায়গায় এইরকমভাবে আর্থিক দুর্নীতি রয়েছে, প্রত্যেকটা জায়গায়। জলের ক্ষেত্রেও এই জিনিস রয়েছে। আপনারা দেখুন ডেঙ্গুর কী অব্যবস্থা। অক্টোবর 10 তারিখ বলেছিল সরকারিভাবে 10 তারিখ অবধি ডেঙ্গু নির্মূল হয়ে যাবে, ডেঙ্গু থাকবে না শহরে। আজকে 10 তারিখ হতে একদিন বাকি আছে। আমরা জানতে চাই যে এখনো পর্যন্ত ডেঙ্গু নির্মূলে কি হয়েছে। এই যে পরপর জল হলো, বৃষ্টি হলো, এখানে সব জায়গাতে জল জমে গেল, আবার নতুন করে কিভাবে কি পরিকল্পনা আছে তা এবং কি কি স্টেপ নেওয়া হচ্ছে। আমরা অক্টোবরের ফার্স্ট উইকে আমরা দেখেছিলাম 600 ডেঙ্গু আক্রান্ত মানুষ ছিল, 600 অক্টোবরের ফার্স্ট উইকে। আজকে দেখুন এখনো পর্যন্ত 3 জন মারা গেছে আমাদের এখানে, অফিসিয়ালি রেকর্ডেড 3 জন, অবিনাশ সাউ, বুধনি হাঁসদা এবং চন্দনা চ্যাটার্জি। আজকে আমি বলছি আমাদের কার্যকর্তা, ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা মদন চৌবে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে বাড়িতে, সেও ডেঙ্গু এফেক্টেড। তো ঘটনা হচ্ছে যে ডেঙ্গু নিয়ে এখনো পর্যন্ত কি করেছে সেটা পরিষ্কার শ্বেতপত্র প্রকাশ করে জানাতে হবে। ওই প্রেসের সামনে বললাম, জানালাম, হবে 10 তারিখ সরকারিভাবে বলেছিল ডেঙ্গু নির্মূল হবে। আমাদের সমস্ত 13টা ওয়ার্ডকে এফেক্টেড ঘোষণা করা হয়েছিল, তার মধ্যে বড় 4 আর বড় 5 বাজার এরিয়া যেটা পড়ে সেখানে সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড ছিল। বলা হয়েছিল এটা জানাতে হবে, আমাদের শ্বেতপত্র প্রকাশ করে জানাতে হবে যে কি अवस्था रही है, डेंगू परिस्थिति की अवस्था रही है। आरटीओ पर लगा एक चालक को पीटने का आरोप। जी हां, खबर है कि कल रात चौरंगी फाड़ी अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर रामपुर एमबीआई चेकिंग पॉइंट पर एक 12 पहिया वाहन के चालक को आरटीओ ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने वाहन को नहीं रोका और एक होटल के पास जाकर जब उसने अपना वाहन रोका तब आरटीओ के स्टाफ ने ड्राइवर को वाहन समेत गिरफ्तार कर लिया। चालक ने आरोप लगाया है कि उसे बहुत पीटा गया है। वो आरा का रहने वाला है और वो बिहार की ओर जा रहा था। वहीं आरटीओ के स्टाफ ने साफ इनकार किया कि कोई मारपीट नहीं हुई है। वहीं गाड़ी की परमिट एक्सपायर हो गई है। आज चालक को गिरफ्तार कर आसनसोल कोर्ट में पेश किया गया। मेरा मोबाइल है, पैसा है, कैसे हम छोड़ के बैठ जाए दूसरा गाड़ी में? हम अपना गाड़ी में नहीं बैठ के जाएंगे, नहीं बैठा पाए हमको। चुप चुप। और उसके बाद हमको मारे हुआ दम दम से। अच्छा, हम आ रहे थे कहाँ पर? रास्ता में सम्राट होटल के पीछे। हम गाड़ी नहीं रुक पाए तो सम्राट होटल में लगाए। ये लोग बोला क्यों नहीं रोका गाड़ी? हम कहें कि सर कैसे रोक देंगे गाड़ी, न जानते हैं न कुछ, हम लोग गाड़ी रुकने वाले हैं कि हम पहचान गए तब ना। तो ये लोग उतार के हमको चाबी छीने, चाबी छीन कर बड़ी मार मारा हुआ, पेट में गोड़ में चोट हो गया। वहाँ से टांग के लाए
पैर में चोट है। कौन मारा आपको? सर जी मारा। कौन सा? आरटीओ। कहाँ के? अभी पता नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा सुनील नाम। कहाँ रहता है? हमारा घर है। जा कहाँ रहा था? बिहार जा रहे थे। क्या लेकर रखा था? सूती बोरा। ठीक। Soon about I was not in the spot, but as far as I was informed that the driver was so rush and he did not attempt to just pause the vehicle, and he tried on going towards the border, and the permit of the vehicle was invalid, and all the papers that were asked to give to us, he ignored that directions. And he is also in a drunk position. ड्रंक पोजीशन तो आप इसका चेक करवाएं? हाँ, इसीलिए तो थाने पर लेके गए थे ना। चेक किए? तो इसका चेक तो होगा डॉक्टर, इधर जो डॉक्टर है उसके बाद। ठीक है, देखिए ना आपके कैसा किया है, आपको नहीं दिख रहा है? ये देखो गवर्नमेंट ऑफिशियल का ये क्या है, वो देखने नहीं दिख रहा है। ड्राइवर का परमिट, गाड़ी का परमिट नहीं है, वो नहीं दिख रहा है। नहीं, वो तो सारा बात आपको ठीक है, वो बात तो परमिट बंद नहीं जा रही है, मारपीट के ऊपर। मारपीट नहीं हुआ, मारपीट नहीं दे रहा। आपका काम है, आप वो नाटक कर रहे हैं, इसका सुन रहे हैं, और इसका गवर्नमेंट ऑफिशियल का ये यूनिफॉर्म छोड़ के कैसे मारे हैं, नहीं मारे, अब होटल पे पता चल जाएगा जब पीटा है कि नहीं पीटा है। गाड़ी को हम लोग का ले आना पड़ा, और वो जो उधर का जो होटल लोगों का जो पैर में चोट है, जितना है लाख से पैर में चोट है मेरा, वो देख रहा है चला सर, और কিছু नहीं যাবেন আমাদের সাথে মানে ও বলছে অ্যালেন্স করছিল যে আমাদের 20000 টাকা আছে, আমি বলে দেবো লোককে যে আমরা 20000 টাকা গাড়ি থেকে নিয়ে নিয়েছি, এটাও বলে গাড়ি আমরা নিয়ে চলে এসেছি, ওই অ্যালিগেশনও দেওয়ার চেষ্টা করছি। আর ইউনিক ছিঁড়ে কি করে দিয়ে দেখো, লাইনার ছিঁড়ে দিয়েছে পুরো এইখানে মেরেছে। স্যার কি নাম আপনার? সুব্রত জৈন। কি পোস্ট আপনার? পুরবিকল इंस्पेक्टर रामपुर। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अगर आप है परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर सीबीएसई बोर्ड। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कंपटीशन। हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर। अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे सिलपांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, जीटी रोड, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व हेपा फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, जीटी रोड, आसनसोल। अपने घर के लिए बेटर प्राइस और बेस्ट क्वालिटी फर्नीचर की कर रहे हैं खोज, तो ओरिएंट स्टील इंडस्ट्रीज अब फर्नीचर मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कर रहा है अलमीरा, बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा और दूसरे फर्नीचर्स। अट्रैक्टिव डिजाइन वाले फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आरामदायक, सिर्फ आपके घर के लिए 0% इंटरेस्ट के साथ पाए फाइनेंस फैसिलिटी। नोट करें हमारा एड्रेस, नरसिंहबाग नियर बालाजी धाम, अपर रोड, बर्नपुर। कई
सुविधाओं के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की करनी हो खरीदारी तो मोबाइल हॉस्पिटल है सुल्तानचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0 डाउन पेमेंट और 0% इंटरेस्ट के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स, वो भी ऑनलाइन से कम प्राइस में। स्मार्टफोन्स ही नहीं, मोबाइल हॉस्पिटल में मिलेंगे स्मार्ट टीवी, टैब्स और अदर एसेसरीज। हमारा एड्रेस है ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर चेडांगा, आसनसोल। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अपकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, जीटी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। आज बीएनआर स्थित रविंद्र भवन में पश्चिम बंगाल हिंदी एकेडमी की ओर से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एकेडमी के मनोज यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुप्रेरणा से आयोजित किए गए इस प्रतियोगिता में पुरुलिया, पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान एवं वीरभूम जिले के 102 हिंदी माध्यम स्कूल एवं कॉलेज के हिंदी विभागों के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता को 8 विधाओं में आयोजित किया गया है। इस हिंदी दिवस समारोह के लिए एक स्वागत गीत प्रस्तुत साथीगण वादक यंत्र के साथ। लोक गायन प्रस्तुत किए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। तो कौन सा गाना शुरू किया क्या? मैं विरह गाई थी। हम लोग आप उसको कट कीजिए। आज पश्चिम बंगाल सरकार की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी ने पुरुलिया, पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान और बीरभूम जिलों के 102 हिंदी माध्यम स्कूलों और कॉलेज के विभागों को लेकर के 8 विधाओं में प्रतियोगिता आयोजित की है विद्यार्थियों के मध्य। ये 8 विधाएं हैं
निबंध लेखन, चित्रांकन, लघु नाट्य, हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता, सामूहिक नृत्य, आशु भाषण, सामूहिक नृत्य गायन और कविता आवृत्ति। इन प्रतियोगिताओं के मध्य हम लोग चाहते हैं कि हिंदी भाषियों के मध्य भी यहाँ की प्रधान भाषाई समुदाय के समान साहित्यिक सांस्कृतिक विकास हो और उनकी समाज की एक पूंजी बने। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है।